When you take a promise of the word, जब आप वचन का एक वादा लेते हो, meditate on it, उस पर मनन करो, ponder on it, उसके बारे में सोचो, speak it, उसको बोलो, sing it, गाओ उसको, pray it, प्रार्थना करो, stick it on your wall, अपनी दीवार पे चिपका think दो, about it, सोचो उसके बारे में, dream about it, सपने देखो उसके बारे में, stay in the word, वचन में बने रहो, speak the word, वचन को बोलते रहो, hear the word, उसको सुनो, sing the word, गाओ वचन को, think about the word सोचो वचन के बारे until में, the word enters your heart. जब तक वचन आपके दिल में And प्रवेश when करता the जाए, word enters your heart, और जब वचन आपके दिल में जाएगा, it will produce harvest on its वो own. अपने आप से फसल लेकर के आएगा। परमेश्वर का वचन बीज है, If it's seed, अगर वो बीज and if है, the kingdom of God is a man, then that means God will hold you responsible for your harvest. अगर वचन बीज है और परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य, तो मतलब परमेश्वर एक मनुष्य को जिम्मेदार ठहराएगा आपकी फसल के लिए। Hallelujah. पड़ोसी को बोलो, रो कम बो ज्यादा। Tell your neighbor, cry less, sow more. कई लोग बो नहीं रहे मगर सालों से रो रहे हैं। Many people have not been sowing, they've just been weeping, crying. It doesn't rhyme in English, but that's okay. अंग्रेजी में वो लय नहीं आती, पर कोई बात नहीं। Okay? पड़ोसी को बोलो, रोने से नहीं होगा, बोने से होगा। It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया और फिर एक बड़ी कटनी उसने काटी। The Bible doesn't say that the kingdom of heaven is like a man who cried a lot and then he had a harvest. Now, we are not robots, okay? हम robots नहीं हैं। It's beautiful when you cry in the presence of God. I खूबसूरत cry in है। the presence of God. खूबसूरत है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हो, मैं भी रोता हूँ। But I don't cry to manipulate God to give me something. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ। I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ जब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को अपने जीवन में देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। But not like healing. दे दे। प्रभु मैं रो रहा हूँ। जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? When he did not spare his own son, why will he not with him give you all things? You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of His own goodness, because of His own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो कुछ करे। 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका, अपने आप से आपके उसने सब कर दिया। Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। So your days of crying are turning into your days of sowing. Amen. Hallelujah. इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में। Sow and sow and sow so much that you will feed the nations in Jesus name. Okay? ये परमेश्वर की साइंस है। This is the signs of God. गांव में, अगर मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी देखा, कई बार ना किसान वो कपड़े में लपेट के बीज लेके आते हैं। In the village, sometimes the farmers will carry seed in a cloth. इतनी सी पुड़िया में आ जाते हैं, पोटली में In a pack, they will सारे make a बीज। pack. All the beans, मगर all जब the seed. कटनी लेके आते हैं तो ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, ट्रैक्टर भर के, ट्रैक्टर भर के। But when they get the harvest fills tractors upon tractors. यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, जो सबसे छोटा प्रति। जब लोग बोलेंगे क्या कर रहा है तू, आप अपने घर में वचन लेके कर रहे हो। Jesus said the kingdom of heaven is like a mustard seed. It looks so small. When you do this, people will say, what are you doing? But He was wounded for my transgression. वो मेरे He was bruised for my अपराधों के iniquities. लिए मारा The गया। chastisement of His peace was उसके upon Him, and by His stripes I am healed. By the stripes of Jesus. लोग बोले क्या कर रहा है ये, इतना छोटा दिखाई। मगर जब हार्वेस्ट आएगा, कैंसर गया, एड्स गया, अंधापन गया, लंगड़ापन गया, जब उसकी बढ़ोतरी आने लग जाएगी, तो केवल आप ही नहीं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया देखेगी उसे। When you will start to sow the word in your life, people will look at it and say, what are you doing? But when the harvest will come, you will see all the sicknesses disappear and all the people will see your harvest. Amen. Hallelujah. थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट का माहौल हो गया है यहाँ पे। Amen.
हालेलुया। सो क्या बोले, याद रखना, रोने के दिन बोने के दिनों में बदल रहे हैं और बोने के दिन कटनी के दिनों में बदलेंगे, और ये कटनी फिर रुकने वाली नहीं है। यीशु मसीह के आगमन तक आप कटनी करते रहोगे। So your days of crying are turning into your days of sowing, and these days of sowing will become the days of harvesting, and your harvest will not end till the day of Jesus. Now hear this. When you're reading the Bible every day, जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, it's not a religious routine. ये धार्मिक रीति रिवाज नहीं। You're like, God, give me the कह रहे हो, seed for today. परमेश्वर मुझे आज के लिए बीज दो, Give me the seed for today. मुझे बीज दो आज के लिए प्रभु। Give me the seed. Lord, you know. प्रभु आप जानते हो, God knows your need. परमेश्वर आपकी For जरूरत every जानता है। need, God has a seed. परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है और हर जरूरत के लिए उसके पास बीज है। Amen. आपके लिए, For every need, हर एक जरूरत के लिए there is a seed. बीज है। Take that seed. उस बीज को लो, Meditate on that उस seed. पर मनन करो, Ponder on that seed. सोचो उसके बारे में, Speak. बोलो उसको, Sow. बो उसको अपने अंदर। परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, A man of God, Kenneth E. वो Hagin, परमेश्वर के पास हैं, he's gone to be with the Lord. जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। I dearly honor him. अभी तो इतना आदर, कोई जो हमारे अगेंस्ट में वीडियोस बना रहा है, उन्होंने उनके साथ मेरी फोटो लगा दी। मैंने कहा प्रभु, इससे बड़ा आदर क्या हो सकता है। Some people who are making Thank you, videos brother. against us, they put my वाह! photo next to him. I said, Lord, what ये greater तो privilege कितना for आदर me. है। This is so Okay. much honor So, for me. जब वो 14 या 15 साल के थे, उनको दिल की एक बीमारी थी When he was 14, 15 और वो years old, मर he रहे had थे a- उस समय। he had a heart condition, he तो was उन्होंने dying of it. वचन पढ़ना शुरू किया। He started to read the word. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के बीज स्वरूप में जो पावर है। I'm telling you the power in the word of God, that's the और seed. पढ़ते पढ़ते And while मरकुस reading- 11:24 में आ गए। He read Mark 11:24. उसमें लिखा था It says- 24 Mark 4. 11 24 23 24 Mark 11:23, 24. और उसमें था, जब तुम प्रार्थना करो कि प्रतीति कर लो कि तुम क्या हो, तुम्हें वो मिल गया है, तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसी हो जाएगा। And it had said, when you pray, believe that you have received and you will have it. तो वो रोज इस बात पर मनन करने लगे, So he started to meditate on this daily. वचन पढ़ने लगे। वो कहने लगे, जब मैं वचन पढ़ता था मुझे नींद आती थी। He said, when I read the word, I was able to sleep. तो उन्होंने शैतान को बोला, शैतान अगर तू मुझे सुलाएगा तो मैं डबल वचन पढ़ूंगा, So whenever he read the word, he slept. So he told the devil, if you try to make me sleep, I'll read the word double. है ना। मगर ये आपके साथ तो होता नहीं, चलिए कोई नहीं। This doesn't happen तो- to you, so that's okay. और वो कहने लगे, वो वचन पढ़ते रहे, वचन पढ़ते And he रहे। said he kept on reading the word. और बार बार इसकी घोषणा करते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया, मैं He विश्वास kept on करता saying, I believe चले I'm नहीं healed. थे। I believe I'm healed. हूँ। बिस्तर में थे, चल नहीं सकते थे। He was on his bed and he had not walked. महीनों हो गए। अब क्या हुआ है, For हल्के months. हल्के समझिए, क्योंकि वचन को वो मनन कर रहे हैं, वचन अंदर गया, अब फसल बाहर आने लग गई। Now because the word went in, because he was meditating on it, now the harvest started to come out. जो आप ये कलीसिया देख रहे हो, जो आप यहाँ पे काम देखते हो, ये और कुछ भी नहीं है, ये कमरे में बोया गया बीज है, ये फसल आप सब लोग देख When रहे you हैं। see this church, when you see what's happening here, this is nothing but the seed that was sown in the room. वही बीज परमेश्वर ने आपको भी दिया है। The same seed God has given to you. या तो रो लो या तो बोलो, Either you can cry or you can sow. राइट। उसके बाद एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी और बोला, अगर तू सच में विश्वास करता है कि तू चंगा हो गया तो तू बिस्तर में क्या, उठ और चल। One day the Lord spoke to him and said, if you really believe you're healed, why are you in your sick bed? Get up and walk. अगर ये वो खुद से करने की कोशिश करते तो कभी नहीं होता, If he did it on his मगर own, क्योंकि वो वचन में बने रहे, वचन, faith comes by hearing and hearing by the word of God, the word in his heart produced the faith to come out of this sickness। विश्वास सुनने और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। वो वचन जब उनके अंदर गया, उसने विश्वास को पैदा किया उस बीमारी से बाहर आने के लिए। और वो बताते हैं कि पहला पांव उन्होंने रखा तो उनको ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां उनके पांव में चुभ रही हैं। And he said the first step he took out of his bed, he felt like lakhs of needles were pinching him. Hundreds of thousands of needles were pinching him. और शैतान उन पे हंस रहा है कि तू चल नहीं सकता। And the devil was mocking फिर him. उन्हें saying, "You एक cannot और walk." कदम रखा। Then he took the next step. Always remember this, हमेशा याद रखना, when you stand on the word, जब आप वचन पे खड़े होते हो, you are calling on to the faithfulness of God, आप परमेश्वर की भलाई को पुकारते हो। because उसकी the विश्वास योग्यता। integrity of God
is backed by his word. क्योंकि परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी, उसका वचन उसके पीछे खड़ा है. When you go to God with his word, when you go to him and said, Father, your word says this, I stand on this word, I will meditate on this word, I will confess this word, I will declare this word, I will sing this word, I will write this word, I will swim in this word until this word starts to manifest in my life. क्योंकि आप कहोगे प्रभु ये तेरा वचन है, इसमें ऐसा लिखा है, मैं इस पे मनन करूंगा, इसको बोलूंगा, इसके बारे में सोचूंगा, गाऊंगा, जब तक ये मेरी हकीकत ना बन जाए. जब अफ्रीका में ब्लूबॉनिक प्लेग था और सब लोग मर रहे थे, When it was bubonic plague in Africa and people were एक dying, परमेश्वर के दास हैं, उनका अब तो प्रभु के पास है, उनका नाम है जॉन जी लेक. a man of God, John वो G. Lake, प्लेग ऐसा था कि 24 घंटे से 48 घंटे में अगर किसी को होता था, एक दिन में उस बंदे की मृत्यु हो जाती थी. the plague was such that people were dying of it within 24 to 48 hours. और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वहां टीम्स आई, जिन्होंने पूरा गियर पहना था, वो भी मर रहे थे उसमें. तो सब लोग डरते थे वहां जाने से. ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंटरनेट में. And even the people of World Health Organization that were going there, despite all that, they were wearing the. और ये जो protective gear, they were व्यक्ति dying. हैं, ये वैसे ही कुछ प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना, कोई हेलमेट नहीं है, कोई दस्ताने नहीं है, कुछ नहीं है. ये गए और इन्होंने कहा, ये जो एक बंदा जो मरा हुआ है, उसके मुंह का जो झाग था जिसमें वो वायरस था, बोला मेरे हाथ में डाल दो ये, और टेस्ट करो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर. जैसे ही ये वायरस मेरे शरीर को टच करेगा, वायरस मर जाएगा. And this man who was serving there, he said, take the foam of a person's mouth that has died of this cancer, of this virus, and put that virus on my hand. The moment it touches my skin, it dies. और जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. जैसा वायरस उनके शरीर को छूता, वायरस मर जाता. And they did that experiment. The moment that virus touched his body, the virus would die. तो ये न्यूज़ फैलने लगी. उन्होंने कहा, ये आपने कैसे किया? This news spread everywhere, and they said, "How have you done this?" तो उन्होंने कहा, He the said, law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. उन्होंने कहा, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की आत्मा की व्यवस्था से आजाद कर उन्होंने दिया. इस वचन पर इतना मनन किया, इतना मनन किया, इतना मनन किया कि मृत्यु भी उनको छू नहीं सकी. एक वायरस जो सबको मार रहा है, वो उनके शरीर को छूते ही मर गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वचन को दिन रात मनन किया. He meditated on this word so much that the virus that was killing everybody could not even touch him because he had meditated on the word of God. Okay. Oh, hallelujah. आगे क्या लिखा है? For the earth yields crop by itself. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल फलाती है. पृथ्वी अपने आप फल लाती है. आपके जीवन में फल अपने आप आएगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा. पृथ्वी अपने आप फल लाती है. मैं ये घोषणा करता हूं, आपके जीवन में अपने आप फल प्रकट होने लग जाएंगे यीशु के नाम में. The earth will yield crop on its own. I declare your life will bear fruit on its own. Amen. अगर मुझे कद्दू उगाने हैं अपने बगीचे में, If I want a type of vegetable in my तो मुझे क्या ढूंढना है? garden, what do I need? मुझे कद्दू का बीज चाहिए. I need the seed of that vegetable. अगर मुझे टिंडे खाने हैं तो, If I want some other vegetable अगर मुझे लौकी खानी है तो, or some other. अगर आप मेरे घर आओगे तो आपको बढ़िया बढ़िया सब्जियां मिलेंगी. If you come to my house, you'll get these amazing vegetables to eat. ओ हालेलुया. इसी तरीके से आपको क्या कटनी चाहिए? वचन में बीज को ढूंढो और उसको बोने वाले बन जाओ. Similarly, what harvest do you need in your life? Find the word and start to sow it in your life. Okay? For the earth produces yield crops by itself. This word comes from the Greek word automatos, जिससे शब्द आया automatically, यानी अपने आप हो जाएगा. ये automatos शब्द है यूनानी का, which is on its own automatically. It'll happen on its own. हो सकता है आप कलीसिया में आए, आप 20 साल से आ रहे हो, आपको दिखा एक व्यक्ति 6 महीने आया, आप कह रहे हो प्रभु ये कैसे बढ़ रहा है? Maybe you came to church 20 years, you've been coming to church, and you see another person come 6 months, and now you say, how is he growing? तो जब प्रार्थना होती है, मैं आंख खोल के जब देखता हूँ, ये तो इतना जोर भी नहीं लगाता है. Because when they are praying, I see this guy, he's not even putting so much effort. तो फिर ये कैसे बढ़ रहा है? How is he growing? वो इसलिए बढ़ रहा है He's growing because
कि जब कोई नहीं देख रहा, nobody is watching, वो अपने खेत में बीज बो रहा he's है sowing seed in his land, in his और ground. पृथ्वी अपने आप फल को लेकर आती है। And the earth yields harvest on its own. ओके, चलिए जल्दी से खत्म करेंगे, हिंदी में लगाते हैं। पृथ्वी आपसे फैलाती है, पहले अंकुर, बोलो First- पहले अंकुर, First the blade, तब बाल, then the head, ये वाले बाल नहीं, not the hair. पेड़ के बाल, तब बाल और तब बालों में तैयार And दाना। after that, the full grain in the head. ये है आपके फल का प्रगटीकरण आपके जीवन में। This is how your fruit will manifest. in your life. हल्के हल्के जब आप बीज को बोने Slowly, वाले हो gradually. जाओगे, बीज प्रकट होने लग जाएंगे आपके जीवन When में। you sow seeds in your life, fruit will start to manifest in your life. कैन यू पुट दैट पिक्चर? मैंने एक साइकिल बनाई है बीज की, देखिए बीज, फिर अंकुर, फिर पत्ता। The seed, the sprout, the blade, and then the full grain. अब लोगों को पता क्या चाहिए? You know what लोगों people को चाहिए इंस्टेंट। People want instant. मुझे अरे आप उगाते रहो, बस गेहूं दे दो हमें। You keep sowing, you just give us the wheat, the वो seed. अच्छा है, मगर ऐसा आप लंबा नहीं जी सकते। That's good, but you cannot live long like this. You cannot live all your life like this. गो टू द सोर्स। Source के पास जाओ. द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड। परमेश्वर का वचन बीज है. Learn to grow your harvest by putting the word in your heart. अपनी फसल को बढ़ाना सीखो वचन को अपने दिल में डाल करके. अब क्वेश्चन ये आता है, ये कैसे डालें दिल में? Question comes, how do you put it? कैसे? How do you put this in your heart? पड़ोसी को बोलो, उस पर मन